Students, first we'll start with questions based on gratuity, pension, leave, salary. Once we have done with that, 4 question hai. Then after that we'll start with full-fledged questions based on income from salary. So number 1 कर रहे हैं, it is based on gratuity. Mr. Gopi retired from XY Limited on 1st December 2019. Retirement का date है उसका 1st December 2019. Retired on 1st December 2019 after rendering 32 years and 7 months of service. Clearly mention किया है 32 years and 7 months of service. Okay, then his salary at the time of retirement was rupees 20,000 per month. इसका salary retirement के time at the time of retirement 20,000 per month. He was also entitled to dearness allowance of 10,000 per month. अभी आगे important है, 60% of which forms part of retirement benefits. On retirement he received gratuity of rupees 15 lakh. He was paid commission on turnover. Students, ये spelling error है, which was rupees 40 lakh और वो turnover कितना था 40 lakh. अच्छा, paid commission. Students, here I must add a term. He was paid a commission. Okay, let me add that. Students, मैं term add कर लेता हूँ पहले. He was paid commission on turnover which came to rupees 40,000. Calculate exempt amount of gratuity. Payment of gratuity act applicable, and next लिखा है second point, payment of gratuity act not applicable. That means twice the same question has to be solved. पहले ऐसा assume करना है कि payment of gratuity act applicable है, and then you have to assume that payment of gratuity act is not applicable. Okay students, first we are starting with payment of gratuity act applicable. Payment of gratuity act applicable. Okay, हमने इसका लिमिट्स रिकॉर्ड किया था. नंबर 1 actual gratuity received, number 2 rupees 20 lakh, and last number 3 there is a formula for that students, salary last drawn into 15 upon 26 into number of years of service. तो पहला फर्स्ट 2 पार्ट तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, एक्चुअल क्वेश्चन से मिल जाएगा. दिस 20 लाख तो ऑलरेडी गिवन, तो थर्ड हमको कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ एक्चुअल हाउ मच इट इज गिवन. स्टूडेंट्स, कितना था एक्चुअल? ही रिसीव्ड ग्रेचुइटी हाउ मच? ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव ग्रेचुइटी ऑफ रुपीज 15 लाख. उसको 15 लाख का ग्रेचुइटी मिला एक्चुअल स्टूडेंट्स. सो एक्चुअल इट इज गिवन टू अस 15 लाख. So I need to find only the last answer. ये मुझे फाइंड करना है. सैलरी लास्ट ड्रॉन का सिंपल मीनिंग, जब आप रिटायर हुए, द डे व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर्ड, ऑन दैट डे उसका सैलरी पर मंथ कितना था. ओके, पर मंथ भी रिकॉर्ड स्टूडेंट्स. सो विल सी, देखते हैं उसका सैलरी कितना था स्टूडेंट्स. Gopi retired from XY Limited on 1st December 2019 after rendering 32 years and 7 months of service. His salary at the time of retirement was 20,000 per month. He was also entitled to DNS allowance of 10,000 per month, 60% of which forms part of retirement benefit students. So दो चीज़ important है, एक उसका salary 20,000 per month, DNS allowance 10,000 per month, 60% of which forms part of retirement benefits. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं. सैलरी लास्ट ड्रॉन हमें पता चल गया. नाउ वी नो इट इज 20. अच्छा, सैलरी, व्हाट डज सैलरी मीन स्टूडेंट्स हियर? सैलरी इज बेसिक प्लस DA. ओके, यहाँ कमीशन नहीं आता बिकॉज दिस इज विच
विच वन वी आर फॉलोइंग, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हम लोग फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स. सो ये केस में ना स्टूडेंट्स इसके अंदर ना प्लस कमीशन नहीं आता है स्टूडेंट्स. सो बेसिक वी नो पर मंथ इट इज गिवन एज 20,000. DA कितना लिखूंगा स्टूडेंट्स, ऑल्दो इट इज गिवन 10,000 बट क्वेश्चन सेज दैट ओनली 60% शुड बी कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. व्हेन यू मेक कैलकुलेशन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ओनली 60% should be considered. So 10,000 into 60% will be 6,000. 6,000 plus 20, so total will be 26,000. So now we know salary last drawn, तो ठीक है, salary last drawn 26,000 multiply by 15 upon 26. अभी number of years of service ढूंढो स्टूडेंट्स. यहाँ पे था number of years of service, right in the first line स्टूडेंट्स, यहाँ था 32 years and 7 months. मिल गया? Okay, तो we'll go over here 32 years and 7 months. We are following what students? हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल. पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल में इफ पार्ट ऑफ दैट सर्विस, टेन्योर ऑफ सर्विस exceeds 6 months, 6 महीना क्रॉस कर गया, राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट ईयर. सो 32 years and 7 months will become 33 years स्टूडेंट्स. ठीक है, बिकॉज वो 32 years and 7 months है. कैलसी यूज कर लेते हैं, विल गेट द आंसर. सो आंसर विल बी 26,000 per month salary last drawn into 15 divide by 26 into 33. So it comes to 4,95,000. Third answer हमें आया 4,95,000. So we got this answer students. इसका आंसर आया 495. And we write what students? ये तीनों को लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मैं भूल गया था लिखना. We say whichever is less, है ना. So यहाँ मैं लिख देता हूँ whichever is less. So तीनों आंसर को कंपेयर करो. एक्चुअल 15 लाख, as per the government rules 20 lakh, the second, and third answer we got 4,95,000. So whichever is less, which is less, 4,95,000 is less. So exempt amount will be 4,95,000. तो अगर मुझे अभी ग्रेचुटी का कैलकुलेशन बताना होगा ना इनकम फ्रॉम सैलरी में, तो मैं ऐसा करूंगा स्टूडेंट्स. ग्रेचुटी, दिस पर्सन रिसीव्ड 15 लाख, उसको मिला 15 लाख, देन आई विल से less exempt under section 10 subsection 10. How much exempt? Whichever is less. Whichever is less मतलब 4,95,000 will be exempt. तो जो बैलेंस नेट बचेगा ना स्टूडेंट्स, दैट बिकम्स टैक्सेबल. इतना सैलरी पे उसको, इतना ग्रेचुटी पे, सॉरी नॉट सैलरी, इतना ग्रेचुटी पे उसको टैक्स पे करने को आएगा. ही हैज टू पे टैक्स ऑन दिस 10,05,000. So exempt amount is 495 whichever is less, but he has received 15 lakh. तो 15 लाख में से जो exempt हो रहा है उसको माइनस करो. exempt मतलब not taxable, non taxable. Okay, so balance net answer will be taxable. That's what they had asked. Calculate exempt amount of gratuity. So this is the exempt amount and you can say this is the taxable amount. आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ taxable amount. ठीक है स्टूडेंट्स. Now they have said कि ये क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. First we applied payment of gratuity act applicable. Now they say we must apply what students? Payment of gratuity act not applicable. चलो ठीक है, payment of gratuity act not applicable करते हैं अभी. So here I will write payment of gratuity act 1972 not applicable. Same data, same question, we have to solve it once again students. Number 1, अगेन एक्चुअल जो भी क्वेश्चन में देगा दैट इज गिवन. कितना दिया है? 15 लाख. देन ₹20 लाख. थर्ड पार्ट में आने के बाद फॉर्मूला चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स. वी से एवरेज सैलरी ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? ऑफ 10 मंथ्स. एवरेज 10 मंथ्स का होना चाहिए अपॉन 2. वहाँ पे एक्चुअली ऐसा टर्म है स्टूडेंट्स, हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी. ओके, देन एवरेज सैलरी बाद में उन्होंने डिफाइन किया है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में लिख देता हूँ. एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. ओके, तो स्टूडेंट्स ये दो आंसर ऑलरेडी हमें पता है, एक्चुअल एंड दिस इज एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. नाउ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, तो मुझे 10 मंथ्स का सैलरी चाहिए. ओके, सो पहले देखते हैं वो रिटायर कब हुआ स्टूडेंट्स. ओके,
यहाँ पे उन्होंने कहा था ही रिटायर्ड ऑन 1 December 2019। अच्छा, हमने ऐसा लिखा है स्टूडेंट्स, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल, 10 मंथ्स का एवरेज फाइंड करना है, तो कब से स्टार्ट करें स्टूडेंट्स? इमीडिएटली प्रिसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ऐसा हमने लिखा था। तो रिटायर कब हुआ, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ही रिटायर्ड इन December 2019। सो प्रायर टू दैट इमीडिएटली प्रिसीडिंग मंथ, दिसंबर से पहले कौन सा महीना आता है स्टूडेंट्स? नवंबर। सो वी मस्ट स्टार्ट विद नवंबर स्टूडेंट्स। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं वो डिटेल्स लिखता हूँ स्टूडेंट्स। सो हाउ विल सॉल्व दैट? तो पहला हम लिखेंगे नवंबर एंड वी हैव टू गो बैक 10 मंथ्स तक हमको पीछे जाना है। तो स्टूडेंट्स पहला महीना तो हो गया नवंबर। नवंबर के पीछे जाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? अक्टूबर। 10 कॉलम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है, चलो एडजस्ट करना पड़ेगा। सितंबर, देन वी हैव अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल एंड मार्च। सो 10 मंथ्स हो गया स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो मार्च से पहले विल बी फेब। सो इन ऑल 10 मंथ्स हो गया अभी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे द टर्म सैलरी मीन्स व्हेन पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। सैलरी का मतलब क्या होता है? उसका बेसिक हमें पता है, यस 20,000। DNS allowance 10,000 but 60% of it forms for part of retirement benefits, तो 6,000 प्लस कमीशन। अगर आपको याद हो, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल स्टूडेंट्स, सो प्लस कमीशन। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ देखो कमीशन, कैसा कमीशन दिया है उन्होंने? ही वॉज पेड कमीशन ऑन टर्नओवर विच केम टू ₹40,000। हमने नोट्स में जो लिखा है ना, वहाँ पे ऐसा लिखा है दैट कमीशन शुड बी एज अ percentage on turnover, ऐसा 2%, 3%, 0.5%, 5%, it's not in percentage. They have given an ad hoc total amount कि उसको commission मिला 40,000. This should not be considered students. So even though commission हमको दिया है students, but I won't record it for the simple reason commission जो होता है students, again I repeat, commission should be as a percentage. तो students आपके reference के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये basic था, ये आपका DA था, और अभी आपको कमीशन चाहिए। इवन दो इट इज गिवन, वी वोंट कंसिडर इट फॉर द सिंपल रीजन स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स नवंबर का अगर मैं टोटल करूं तो कितना आएगा? 26। अच्छा, अक्टूबर में भी मैं सेम लिखूंगा, बिकॉज स्टूडेंट सैलरी हैज़ नॉट चेंज। ऐसा कुछ दिया नहीं है कि पास्ट में सैलरी कुछ और था, ऐसा कुछ लिखा है क्या? गोपी रिटायर्ड ऑन 1 December आफ्टर रेंडरिंग सो एंड सो मंथ्स ऑफ सर्विस, ईयर्स इन सर्विस, हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ सो एंड सो 20,000 पर मंथ। मतलब पास्ट में कितना सैलरी था, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि अक्टूबर में कितना था, सितंबर में कितना था। सेम वे फॉर DNS अलाउंस, नथिंग इज सेड कि पास्ट में कितना था। सो स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट, और वी कैन एज्यूम दैट कि जो नवंबर में है पास्ट में भी सेम था, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कोई डेटा दिया हो कि दैट सैलरी इज डिफरेंट इन ऑल द मंथ, सो वी कैन राइट डिफरेंट अमाउंट्स। बट व्हेन नथिंग इज सेड, दैट मीन पास्ट में जितने महीने हैं स्टूडेंट्स, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, हर मंथ में सेम था। दैट इज अ सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स। तो हर मंथ में सेम था, सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? सो हर मंथ में मुझे 26,000 ही लिखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं इसके लिए पूरा डिटेल्स लिख रहा हूँ, अदरवाइज शॉर्टकट भी होता है स्टूडेंट्स। तो सितंबर में भी 26, अगस्त में भी 26, जुलाई में भी 26 आएगा, है ना? नो कमीशन, बेसिक प्लस DA हम लोग कर रहे हैं। मई में भी 26, अप्रैल में भी 26 होगा टोटल करेंगे तो, मार्च में भी 26 होगा, एंड फेब में भी 26 होगा स्टूडेंट्स। तो ये 10 मंथ्स का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो जब आप रिटायर हुए उसका प्रीसीडिंग मंथ देखने का, ही रिटायर्ड इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब। फिर उसका बेसिक लिखो, DA लिखो, एंड कमीशन, कौन सा कमीशन स्टूडेंट्स? विच इज गिवन एज अ परसेंटेज, और DA कौन सा? विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उतना ही DA लिखा जाता है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी एवरेज फाइंड करना ना, व्हाट डज एवरेज मीन्स? ये 26,000 का सबका टोटल करो 10 मंथ्स का, तो 26,000 का 10 मंथ्स का टोटल करोगे तो 2,60,000 आएगा, सिंपल मैथ्स। और एवरेज मतलब डिवाइड बाई 10, सो 2,60,000 डिवाइड बाई 10 करोगे तो एवरेज क्या आएगा स्टूडेंट? सेम 26,000।
तो मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन सैलरी इन पास्ट 10 मंथ्स इज सेम, सैलरी डीए कमीशन अगर सब सेम है स्टूडेंट्स, सो डोंट वेस्ट टाइम टू मेक दिस कैलकुलेशन। आपने डेटा पढ़ लिया, क्वेश्चन का क्लिक हो गया आपको कि पास्ट इन ऑल द मंथ्स सैलरी इज सेम स्टूडेंट्स, कमीशन इज ऑल्सो सेम, डीए इज ऑल्सो सेम, तो इफ यू ट्राई टू फाइंड एवरेज तो एवरेज आपको वही आना है जो नवंबर का आपको डेटा दिया है स्टूडेंट्स, पास्ट का तो डेटा नहीं दिया था, तो यू कैन से पास्ट में भी सेम है, तो जो नवंबर में आपको आंसर आए ना, दैट सेम आंसर विल यू गेट इट एज एवरेज सैलरी। तो वाई टू वेस्ट टाइम स्टूडेंट्स, एग्जाम में टाइम इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो अगर सैलरी या डीए या कमीशन आउट ऑफ दीज थ्री, इफ दीज अमाउंट्स कीप ऑन चेंजिंग, चलो बेसिक और डीए सेम है बट कमीशन हर महीना चेंज हो रहा है, या बेसिक सेम है हर महीना, डीए कमीशन चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू मेक द एंटायर कैलकुलेशन स्टूडेंट्स। बट वंस यू नो कि हर महीना में ये 20 and 6 20 and 6 20 and 6 एंड कमीशन इज 0 0 0, तो विल गेट 26,000 इन ऑल द मंथ्स, तो इसका एवरेज फाइंड करोगे तो 26,000 ही आएगा। तो वाई टू वेस्ट टाइम, बिकॉज एवरेज का मतलब क्या, ये सबका टोटल, तो 26,000 को 10 टाइम टोटल करोगे तो स्टूडेंट्स 2,60,000, उसको अपॉन 10 एवरेज फाइंड करना है क्योंकि 10 मंथ्स का, तो आपको 26,000 ही आंसर आना है। तो डोंट वेस्ट टाइम, ओके, माय एडवाइस, अगर ऐसा आपको डेटा सेम मिलेगा तो डायरेक्ट जो एक महीने का आंसर है वो एवरेज भी सेम होगा। तो वी गॉट एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। नंबर ऑफ years of service given in the question is, you can refer 32 years and 7 months, but this is payment of gratuity act, not applicable, इसमें राउंडिंग ऑफ नहीं होता स्टूडेंट्स। इफ पार्ट ऑफ योर tenure of service exceeds 6 months, इग्नोर, 32 ईयर्स 11 मंथ्स भी होगा तो आपको 32 ईयर्स ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स वी गॉट एवरेज सैलरी कितना आया, 26,000 अपॉन 2 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज 32, तो स्टूडेंट्स 26,000 डिवाइड बाई 2 विल बी 13,000 इंटू 32, सो इट कम्स टू ₹4,16,000। आपको ये थर्ड आंसर मिला स्टूडेंट्स, ये थर्ड आंसर है ना, दिस वी गॉट, ये थर्ड। सो विच एवर इज लेस, 15 lakh, 20 lakh या 4,16,000, whichever is less, that amount will be exempt, whichever is less, that amount will be exempt। तो स्टूडेंट्स whichever is less is 4,16,000, तो अगेन हम लोग कैसा लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, व्हेन वी स्टार्ट विद अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, पहला हम लोग ग्रेचुइटी लिखेंगे, उसको ग्रेचुइटी मिला कितना, he received 15 lakh, जो एक्चुअल मिला वो लिखने का, देन हमको जो एग्जेम्प्ट आया whichever is less, एग्जाम मतलब नॉट टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, या अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं होगा। एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 वी गॉट 4,16,000, 4,16,000। सो जो नेट आंसर होगा दैट विल बी टैक्सेबल स्टूडेंट्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 10,84,000 इज टैक्सेबल, मतलब इस पे टैक्स पे करने का। Okay, so this is the difference between gratuity act applicable, not applicable. Applicable में कमीशन तो काउंट करते ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल में कमीशन काउंट करते हैं, बट दैट शुड बी एज अ परसेंटेज स्टूडेंट्स, ओके। और फॉर्मूला अलग होता है, थर्ड पॉइंट दोनों का अलग है स्टूडेंट, फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर सेम। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट करते हैं, अभी नंबर 2 में क्या है देखते हैं। Mr. Suresh retired from ABC Limited. ABC Limited, some private company, on 25th November 19. He had joined the company on 1st August 98. कंपनी ज्वाइन किया था 1st August 98, रिटायर हुआ 25th November 19. His salary at the time of retirement was 30,000 per month. ये रिटायरमेंट के टाइम उसका सैलरी था। अब ये ध्यान से पढ़ो, he had received इंक्रीमेंट, उस मतलब इंक्रीमेंट मतलब उसका सैलरी बढ़ाया गया था, हिज सैलरी वॉज रेज्ड, ओके, उसकी सैलरी बढ़ गई थी। ही हैड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 5,000 फ्रॉम 1st June। इंक्रीमेंट कब से हुआ था, 1st June 19, ध्यान रखना। DNS अलाउंस 10,000 पर मंथ। अभी ध्यान से देखो, 50% इज कंसिडर्ड फॉर ग्रेचुइटी एंड 30% इज कंसिडर्ड फॉर ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। He was also entitled to commission of 2%, अभी परसेंटेज में है ना स्टूडेंट्स, so now this percentage should be considered. Turnover achieved by him during the past months is as follows. Jan से लेके Jan 2019 1 lakh, Feb 2019 1,50,000, March till June 2,50,000, July to November it is 3,50,000. Okay, it is per month students, it is per month.
In past, he retired from another company and gratuity of rupees 2,50,000 was exempted in that case. पहले किसी कंपनी में वो काम करता था, from that company he retired, he had received some gratuity from that company and it was exempted of rupees 2,50,000. Calculate exempt amount of gratuity. Again, payment of gratuity act applicable and payment of gratuity act not applicable. पहला ये important है. He joined the company on 1st August 98. Retire कब हुआ? 25th November 2019. Joining date इसका और retirement date है students. Joining date. First August 1998. Retirement date 25th November 2019. तो स्टूडेंट्स हमको इससे पीरियड ऑफ सर्विस मिल जाएगा. स्टूडेंट्स अभी काउंट सिंपल वर्ड्स तो मेंटली कर लेने का स्टूडेंट्स उसको, ठीक है. 1st August 98 से 25th November 2019, हाउ मेनी ईयर्स स्टूडेंट्स? 98 में कितने महीने हो जाएंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो ईयर 98 की बात कर रहा हूँ. ईयर 98 में 5 मंथ्स, अगस्त से लेकर दिसंबर तक. फिर 99 पूरा काउंट होएगा, 2000 भी पूरा काउंट होगा. तो ये डिकेड में अप टिल 2000 यू कैन से 2 years 5 months. अगस्त 98 से दिसंबर 2000 तक 2 years and 5 months. ये वर्किंग नोट है स्टूडेंट्स एक तरह से आपको समझाने के लिए. नाउ रिटायर कब हुआ? 2019 में. सो 2000 से लेके 2018 तक, 2001 फ्रॉम 2001 टिल 2018 दिसंबर तक कितने साल हो जाएंगे? 18 साल, 18 years. नवंबर 2019 को रिटायर हुआ. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ईयर 2019, सो ये 11 मंथ्स होते हैं. सॉरी 11 मंथ्स नॉट 11 years, 11 months. So first what I did, 98 1st अगस्त को ज्वाइन किया, तो 1st अगस्त से 31st दिसंबर तक काउंट कर लो फॉर द ईयर 98. सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके स्टूडेंट्स. सो दिसंबर तक 5 मंथ्स हो गया. ईयर 98 आई एम टॉकिंग अबाउट, ईयर 98. फिर 99 से लेके 2000, 99-2000 पूरा साल हो जाएगा. सो दैट मीन्स 1st अगस्त से 2000 इट विल बी 2 years and 5 months. 1st अगस्त 98 टिल 31st दिसंबर 2000 इट विल बी 2 years and 5 months. देन 2001 से 2018 तक 18 years. और 2019 जैन से स्टार्ट होता है, तो जैन 19 11. सो इट विल बी नॉट एग्जैक्टली 11 मंथ्स स्टूडेंट्स, सॉरी 11 मंथ्स एग्जैक्ट नहीं होगा ये. 25th नवंबर है ना. सो 10 months अक्टूबर तक एंड यू कैन से 10 months एंड 25 days है ना स्टूडेंट्स. आप टोटल कर लो, आप टोटल करते हैं स्टूडेंट. 18 + 2 20 years, 10 + 5 15 months. सो 12 months का तो एक साल हो गया. 18 and 2 20, 21 years हो गया ये. 10 and 5 15 months ना. 15 में से 12 months राउंड ऑफ करके एक साल कर लिया, 3 months बचा. सो 21 years 3 months एंड 25 days. अगर एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ऐसा हो गया इसका पीरियड ऑफ सर्विस. दिस विल बी योर पीरियड ऑफ सर्विस, क्योंकि हमें आगे लिखना पड़ता है ना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, इसके लिए फाइंड करने का. सॉरी पीरियड ऑफ सर्विस या ड्यूरेशन ऑफ सर्विस यू कैन से. ठीक है, इतने साल, इतने महीने, इतना दिन उसने काम किया कंपनी में. वंस अगेन 1st अगस्त 98 को कंपनी ज्वाइन किया स्टूडेंट्स. सो 1st अगस्त 98 से दिसंबर 98 5 मंथ्स होगा. फिर 99 एंड 2000 एंटायर ईयर काउंट होगा, पूरा साल. सो 2 years 5 months हो गया. 1st अगस्त से 31st दिसंबर 2000. देन 2001 2018 मतलब 18 साल पूरे. 2019 में अक्टूबर 10 months एंड 25 days ऑफ नवंबर. फिर इसका टोटल करो, 2 years + 18 years 20 years. 10 and 5 is 15 months, so 12 months का एक साल होगा. So 2 years 18 years and 1 more year, so 21 years. 3 महीना बचा, 3 months and 25 days. Now we start with payment of gratuity act applicable. मैं पहले खाली शॉर्ट में लिख देता हूँ. पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल. उसकी 3 लिमिट्स होती हैं. फर्स्ट इज एक्चुअल, जो उसको ग्रेचुइटी मिला. सेकेंड, जो गवर्नमेंट ने फिक्स रखा है 20 लाख. थर्ड, सैलरी लास्ट ड्रॉन.
इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। इसके लिए हम पीरियड ऑफ सर्विस कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ना आपको वो पीरियड ऑफ सर्विस दिया था स्टूडेंट्स 32 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, यहाँ हमको फाइंड करना पड़ा। सो नॉट एन इश्यू, सिंपल है, बेसिक सी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स। सो एक्चुअल दिया है क्या स्टूडेंट्स? यस देगा डेफिनेटली। एक्चुअल वाज हाउ मच स्टूडेंट्स? he retired from so and so, how much gratuity he had at the time of retirement, turnover achieved by him, gratuity नहीं लिखा क्या मैंने? Mr. Suresh retired from ABC, he joined the company on 1st August, his salary at the time of retirement was this, he had received increment of 5,000 from 1st June, DNS allowance rupees 10,000 per month, 50% is considered for gratuity, 30% considered, he was entitled to a commission, turnover achieved by him during the month is as follows. Okay, अच्छा ग्रेचुटी मैंने लिखा ही नहीं है कंपनी से ग्रेचुटी कितना मिला है स्टूडेंट, सॉरी, आई विल अपडेट दैट, मैं उसको करता हूँ स्टूडेंट्स, आई विल अपडेट दैट, नो नीड टू वरी। ओके, सो गलती मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, सो एक्चुअल नाउ आई एम राइटिंग स्टूडेंट्स, आप अपना क्वेश्चन में उसको प्लीज़ अपडेट कर लेना। सो एक्चुअल जस्ट इन रुपीज़ 10 लाख समझो, एक्चुअल उसको 10 लाख मिला, दिस इज द गवर्नमेंट विच हैव फिक्स, एक्चुअली क्वेश्चन में देना चाहिए स्टूडेंट्स, मैं उसको टाइप करना भूल गया, अभी मैंने ध्यान दिया। सो इट इज़ 10 लाख। ओके, सो अभी मुझे सैलरी लास्ट ड्रॉन दिखना है, एवरेज नहीं, सैलरी लास्ट ड्रॉन। जब वो रिटायर, मिस्टर सुरेश रिटायर फ्रॉम ABC, ही हैड जॉइन द कंपनी सो एंड हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 30,000। जब वो रिटायर हो रहा है उतना सैलरी देने का, ठीक देखने का। ही हैड रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 5,000, कोई मतलब नहीं, रिटायरमेंट के दिन ये सैलरी था ना, तो फॉर अस दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30,000 पर मंथ। हाँ, बट DNS अलाउंस ऑफ रुपीज 10,000, 50% इज कंसिडर्ड फॉर ग्रेचुटी एंड 30% इज कंसिडर्ड फॉर ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ सैलरी, ये तो हमें पता चल गया, इट इज 30,000 पर मंथ, ठीक है। सो 30,000 पर मंथ, उसको DNS अलाउंस पे मिल रहा है 10,000। वहाँ क्या मेंशन किया है कि ग्रेचुटी के लिए 50%, बट ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर कैलकुलेट करना है तो 30%। तो स्टूडेंट्स वी मस्ट कंसिडर 30%। ये इनकम टैक्स का रूल है कि DNS अलाउंस कितना लेने का, दैट पार्ट विच इज यूटिलाइज, विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सिर्फ ग्रेचुटी, सिर्फ पेंशन या सिर्फ लिव सैलरी के लिए नहीं, जितने आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। Okay, so that part of DNS allowance which is utilized for calculation of all retirement benefits, that part should be added. तो ठीक है, वहाँ पे लिखा है for gratuity it is 50%, but for all retirement benefits it is 30%, so I must consider 30% students. So students यहाँ पे 30,000 ये हो गया, so 30,000 10,000 का 30% will be 3,000, so 30 plus this will be 33,000 into 15/26 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। देखो यहाँ फाइन किया 21 ईयर्स 3 मंथ्स, तो 6 मंथ्स के ऊपर तो गया नहीं, सो हम 21 ही लिखेंगे। सो विल गेट द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट 33,000। इसमें कमीशन नहीं आता है स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल इंटू 15/26 इंटू 21, इट कम्स टू 3,99,808। ये आंसर होता है 3,99,808। तो अगेन अगर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं सैलरी का, तो उसमें ऐसा लिखा जाता है ग्रेचुटी जो आपको एक्चुअल मिला, एक्चुअल कितना मिला आपको 10 लाख, तो पहले वो लिखने का, देन राइट लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 विच एवर इज लेस, 10 लाख 20 लाख या 3,99,808। सो 3,99,808 ऑब्वियसली इज द लोवेस्ट आंसर, तो उसमें से 10 लाख माइनस कर लो। So it will come to 6,192, 6,00192. This is your taxable amount students, इस पर टैक्स पे करने को आएगा। So this was payment of gratuity act applicable. Okay, अब payment of gratuity act not applicable के हिसाब से भी करते हैं स्टूडेंट्स। मैं शॉर्ट में खाली लिख देता हूँ नॉट एप्लीकेबल, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल। अगेन इसमें भी 3 लिमिट्स होती हैं। नंबर 1 वही एक्चुअल जो मैं क्वेश्चन में टाइप करना भूल गया, एक्चुअल ऐसा समझो कि 10 लाख है, देना चाहिए क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, शुड बी गिवन। नंबर 2 रुपीज़ 20 लाख, एंड लास्ट नंबर 3 एवरेज सैलरी ऑफ हाउ मेनी मंथ्स, 10 मंथ्स, मैंने शॉर्ट में 10M लिख दिया, अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल आपने काम किया वो लिखो। सो अगेन स्टूडेंट्स एवरेज सैलरी चाहिए, बट कितने महीने का, 10 महीने का, उसके लिए उसका रिटायरमेंट डेट देखते हैं।
ओके यहाँ पे था, ही रिटायर्ड ऑन 25 नवंबर। ग्रेचुटी में चल रहे हैं हम लोग, तो ग्रेचुटी में क्या देखा जाता है, प्रीसीडिंग मंथ। सो नवंबर से पहले क्या आता है, अक्टूबर स्टूडेंट्स। सो अक्टूबर से स्टार्ट करना है और पीछे 10 महीने जाना है, तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं, वो लिख लेते हैं हम लोग, अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं और 10 महीना में पीछे जाना है स्टूडेंट्स। सो अक्टूबर, जब मैं थोड़ा स्पेस रखता हूँ क्योंकि यहाँ बेसिक डी अलग अलग है, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, देन मई, अप्रैल, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8, फेब एंड जैन। मतलब आप अक्टूबर 2020, सितंबर 20, अगस्त 20 ऐसा पीछे जा रहे हैं। सो दिस विल बिकम मार्च 20, फेब 20, जैन 20। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्या क्या चाहिए, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल, बेसिक भी चाहिए, डीए भी चाहिए। अगर कोई कमीशन है एज अ परसेंटेज ऑन टर्नओवर, दैट शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे, ही रिटायर्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड on 25th November. At the time of retirement his salary was 30,000 per month. मतलब नवंबर में उसका सैलरी 30,000 था, बट आगे पढ़ो, he received increment of 5,000 on 1st June. 1st जून से उसका सैलरी इंक्रीज हुआ था स्टूडेंट्स। सो बी केयरफुल। अभी यहाँ देखो स्टूडेंट्स, 1st जून से उसका सैलरी बढ़ गया था, कितने से बढ़ गया था, 5,000 से। तो नवंबर में 30 था, अक्टूबर में भी 30,000, सितंबर में भी 30,000, अगस्त में भी 30,000, जुलाई में भी 30,000। 1st जून से उसका सैलरी बढ़ा था 30,000, मतलब मई में 25 था ना स्टूडेंट्स। सिंपल मीनिंग, जून से हिज सैलरी वाज इंक्रीज्ड टू बाय 5,000 स्टूडेंट्स। तो ठीक है, नवंबर में आप रिटायर हुए तो अक्टूबर में भी 30 था, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून। ओके, जून से इंक्रीज हुआ मतलब मई में 5,000 से कम था। दैट इज अ सिंपल वे टू इंटरप्रेट, बिकॉज वी आर गोइंग बैकवर्ड्स ना स्टूडेंट, पीछे रिवर्स गियर में जा रहे हैं हम लोग। अक्टूबर 20 से जैन 20 में जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सो जून से इंक्रीज हुआ है, तो जून से पहले मतलब कम था, डिक्रीज था, उससे कम था स्टूडेंट्स। ठीक है, सो मार्च में 25। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस। ये ध्यान सब रखने का स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन पार्ट तो बेसिक है, बट ये सब वर्ड्स ध्यान रखने का। नाउ डीए के बारे में ऐसा कुछ कहा है, डीए 10,000 पर मंथ है, बट उसमें ऐसा कुछ इंक्रीमेंट का तो नहीं कहा है स्टूडेंट्स उन्होंने। डेफिनेटली वो खाली सैलरी से रिलेटेड था इंक्रीमेंट, नॉट रिलेटेड टू एनी डीए। बट स्टूडेंट्स डीए अगेन कितना लिखेंगे हम लोग, है 10,000 पर मंथ, and for gratuity purpose they say 3,000, but later on they say अगर आपको रिटायरमेंट सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करने हैं तो यू मस्ट कंसिडर 30%। इसके लिए मैं सिर्फ 30% कंसिडर कर रहा हूँ 10,000 का। सो दिस इज 10,000 इंटू 30%। अब आ जाओ कमीशन। कमीशन देखो एज अ परसेंटेज दिया है स्टूडेंट। ही वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग द पास्ट मंथ इज एज फॉलोज। जैन में 1 लाख, तो स्टूडेंट्स 1 लाख का 2% इजीली फाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 1 लाख का 2% विल बी 2,000। ओके, फिर फेब में 1,50,000, सो 1,50,000 का 2% विल बी 3,000। ओके, मार्च टू जून 2,50,000। अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने की बात कर रहा है। नाउ स्टूडेंट दिस इज नॉट 2,50,000 पर मंथ। मार्च टिल जून मतलब चारों महीने का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टोटल इज 2,50,000। सेम वे जुलाई टू नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का टर्नओवर इज 3,50,000। इट्स नॉट 3,50,000 पर मंथ, वहाँ पे पर मंथ नहीं लिखा है। ओके, जैन इट इज पर मंथ, फेब पर मंथ है, बट यहाँ मार्च टू जून, जुलाई टू नवंबर ऐसा लिखा है। तो पहले जैन और फेब का लिख लेते हैं। 1 लाख का 2%, 1,50,000 का 2%, तो स्टूडेंट सिंपल सा हो जाएगा ये। 1 लाख का 2% विल बी 2,000 एंड वो कितना था, 1,50,000 का 2% कमीशन विल कम्स टू 3,000। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या बोला है, मार्च से लेके जून तक। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का टर्नओवर कितना है, 2,50,000। सो 2,50,000 डिवाइड बाई 4 तो विल गेट टर्नओवर फॉर 1 मंथ 62,500। देन इंटू 2% करो, यू विल गेट 1,250। सो आपको इसके आंसर आ रहे हैं, ये आंसर स्टूडेंट्स 1,250 मार्च से जून तक, 1,250 1,250। ठीक है,
फिर जुलाई से नवंबर की बात किया उन्होंने, जुलाई टू नवंबर, सो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 मंथ्स का टर्नओवर 3,50,000 है, तो फर्स्ट डिवाइड बाय 5 विल गेट 70,000, तो आपका जो टर्नओवर हो गया पर मंथ इट इज 70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, पर मंथ 70,000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2% उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स, सो 1400, दिस विल ऑल्सो बी 1400 अप टिल नवंबर, बट हमको नवंबर की ज़रूरत ही नहीं है, हम प्रिसीडिंग मंथ से स्टार्ट करते हैं। नवंबर में रिटायर हुआ तो हमने अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो स्टूडेंट्स ठीक है, तो ये अभी 30 + 3 एंड दिस, सो दिस विल बी 34,400। सेम वे ये सेम आंसर होगा 34,400, 34,400, 34,400, this will be how much, 33 + 1 34, 34,250, 34,250, 34,250, अच्छा सॉरी स्टूडेंट, नॉट 34, मैं ऊपर 30 समझ रहा हूँ, इट इज़ 25,000, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, रियली सॉरी, 25 + 3 is 28, 29,240, 29,240, सेम वे 29,240, ये 25, 38 एंड 3 is 31, 25, 3, 28 एंड 2 is 30,000। सो स्टूडेंट्स कमीशन मैंने कैसे फाइंड किया, पहला उन्होंने मार्च टिल कितना बोला था, जून ना, मार्च टिल जून 4 महीने का कितना बोला था उन्होंने, 2,50,000, तो आई फर्स्ट डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे आंसर आया 62,500, देन 2% से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट द आंसर फॉर ईच मंथ। फिर जुलाई से नवंबर, they had given us 3,50,000, जुलाई से नवंबर मतलब 5 मंथ्स, सो डिवाइड बाई 5 किया, टर्नओवर 1 महीने का आया एंड मल्टीप्लाइड बाई 2%। ओके, सो नाउ एवरेज फाइंड करना है स्टूडेंट्स, देखो 34, 1 2 3 4 टाइम्स आंसर सेम है, सो स्टूडेंट्स 34,400 इंटू 4, 10 मंथ्स का एवरेज चाहिए, 34,250 एक ही मंथ में, सो 34,250 इंटू 1 प्लस 29,250 कितने महीने में कॉमन है, 3 मंथ्स में कॉमन है, सो 29,250 इंटू 3, प्योर सिंपल मैथ्स, एंड 31,000 2 महीने में, नहीं सॉरी 31,000 इज इन 1 मंथ प्लस 30,000 इंटू 1, सो टोटल 10 मंथ्स का हो गया स्टूडेंट्स, 4 + 1 5 + 3 8 9 10 एंड डिवाइड बाई 10, सबका आंसर फाइंड करो, सो 34,400 इंटू 4 इट कम्स टू 1,37,600 प्लस 34,250 इंटू 1 करेंगे तो 34,250 प्लस 29,250 इंटू 3 करो, सो 87,750 प्लस 31,000 प्लस 30,000 इंटू 1, 31,000 इंटू 1, ये अगेन टोटल कर लो सबका और डिवाइड बाई क्या करेंगे 10 स्टूडेंट्स, सो 87,750, 34,250, 137,600, 31,000 एंड 30,000, न्यूमरेटर का टोटल आएगा 3,20,600 डिवाइडेड बाई 10, सो फाइनल आंसर विल बी 32060, सो वी गॉट स्टूडेंट्स, ये मिला हमको एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। तो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स मिल गया हमको 32,060, 32,060 अपॉन 2, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस हमने फाइंड किया था ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 21 ईयर्स 3 मंथ्स, और वैसे भी यहाँ पे राउंड ऑफ तो नहीं होता है, कितना भी मंथ्स होने दो, नॉट एप्लीकेबल में हम लोग 21 ईयर्स ही लिखेंगे, इवन 11 मंथ्स भी होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 21 ही लिखेंगे। ओके, सो 32060 डिवाइड बाई 2 इंटू 21, आंसर इज 3,36,000 rupees, 336,630, so whichever is less का मतलब स्टूडेंट्स this 10 लाख 20 लाख और जो अभी हमको थर्ड आंसर आया, so this third answer is less। अगेन अगर सैलरी का फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आप लिखेंगे ग्रेचुइटी जो आपको एक्चुअली मिला, क्वेश्चन में मैं टाइप करना भूल गया था, लेटर ऑन आई सेड कि राइट 10 लाख लेस exempt under section 10 subsection 10, whichever is less, so this is the less answer 3 lakh
36,630. So net answer will be, so that will be taxable 6,63,370. This amount will be taxable. So this was payment of gratuity act not applicable students. So ये start हमने यहाँ से किया था students. पहले ये फाइंड किया था नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, फिर एक्ट एप्लीकेबल करके फाइंड किया, कैलकुलेशन किया, वी गॉट दिस आंसर. नॉट एप्लीकेबल वी मस्ट बी केयरफुल बिकॉज एवरेज सैलरी 10 मंथ्स का चाहिए, तो मैंने 10 मंथ्स लिखा. और देखो बहुत सारे मंथ्स में सैलरी बार बार चेंज हो रही है, तो आपको ऐसा कैलकुलेशन बताना पड़ेगा. हाँ, हर मंथ में सेम है तो नो नीड टू मेक एनी वर्किंग, डायरेक्टली उसी को लिख लेने का, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था हमने 26,000 वॉज कॉमन इन ऑल द मंथ, सो वाई टू वेस्ट टाइम, डायरेक्टली 26,000 अपॉन 2 कर लिया था हमने. ठीक है. हाँ, कमीशन वॉज इन परसेंटेज, तो उसका भी कैलकुलेशन मैंने बताया, हाउ वी गॉट दैट कमीशन, वो नीचे मैंने वर्किंग. फिर ये एवरेज फाइंड किया हमने, वी गॉट दिस आंसर 32060. फाइनली ये आंसर था. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी गॉट दैट 32060 हमें आंसर आ गया था. 32060. सो एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. तो ठीक है, अभी एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इज 32060 अपॉन 2. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस हमने स्टूडेंट स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था 21 ईयर्स एंड 3 मंथ्स. नाउ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल है, तो स्टूडेंट्स फॉरगेट दैट नंबर ऑफ मंथ्स, सो इंटू 21. सो 32060 डिवाइड बाई 2 इंटू 21. So it comes to 3,36,630. 336,630. So this will be your whichever is less. So 10 lakh, 20 lakh, or the third answer. Third answer I have recorded on the next slide. 3,36,630. Whichever is less. So 10 lakh, 20 lakh, or 3,36,630. So whichever is less में 3,36,630 है students less. तो okay. So if we are solving a full fledged, अच्छा students एक important point अभी ध्यान आया. He retired from some past employer ना students. कहाँ पे गया here it was. हाँ, he in past he retired from another company and gratuity of rupees 2,50,000 was exempted in that case, students. So क्या करते हैं students, वो कहाँ से माइनस करते हैं students, यहाँ से माइनस करते हैं. तो आपके रेफरेंस के लिए मैं लिखता हूँ वो. सो पास्ट में जो आपको एग्जेम्पशन मिला है ग्रेचुटी का 2,50,000 का मिला, वो माइनस करने का. तो दैट मीन्स सेकेंड आंसर अभी आपका ये 20 लाख नहीं रहेगा. अगर आपको विच एवर इज लेस कंपेरिजन करना है तो 17,50,000 से. सो हाउ विल कंपेयर 10 लाख, 17,50,000 एंड द थर्ड आंसर विच वी गॉट, थर्ड आंसर इज 3,36,000. वंस अगेन 10 लाख, 17,50,000 and the third answer 3,36,000. तो अगेन 3,36,000 ही कम है, नो डाउट अबाउट दैट स्टूडेंट्स, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, वो भूलना नहीं चाहिए हमको. सो स्टूडेंट्स ग्रेचुइटी एक्चुअली हमको मिला 10 लाख एम्प्लॉय को, लेस exempt under section 10 subsection 10 whichever is less is 3,36,630. so balance answer taxable होगा 6,63,370. दिस अमाउंट इज व्हाट स्टूडेंट्स, ये टैक्सेबल होगा. ठीक है. अच्छा, शायद मैं फर्स्ट केस में माइनस करना भूल गया होऊंगा, लेट मी चेक. कहाँ गया फर्स्ट केस, हाँ इधर पे भी माइनस करने का स्टूडेंट्स, यहाँ भी माइनस कर. आंसर विल नॉट चेंज, ये अच्छा है हमारे लिए. 2,50,000 वॉज अर्लियर एग्जेम्प्टेड, वो माइनस करने का. सो ये आंसर 17,50,000. सो व्हाट वी डू, 10 लाख, 17,50,000 और 3,99,000 विच एवर इज लेस. सो आंसर सेम रहेगा 3,99,000, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट. ओके, जब भी अगर ऐसा होगा पास्ट एम्प्लॉयर से आप रिटायर हुए, यू रिसीव्ड सम ग्रेचुटी विच वाज एग्जेम्प्टेड, तो जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट था दैट शुड बी डिडक्टेड ओवर हियर. आई हैव रिकॉर्डेड दिस पॉइंट इन नोट्स स्टूडेंट्स, हमने नोट्स में लिखा है, नो नीड टू वरी. मैं यहाँ पे माइनस करना भूल गया था. ओके, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, पहले उसका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कैलकुलेट एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन. पहला एप्लीकेबल, देन नॉट एप्लीकेबल. नॉट एप्लीकेबल में देखो डिफरेंट सैलरीज आ रहा है, तो ऐसा कैलकुलेशन किया. एंड कमीशन का इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन स्टूडेंट्स. ओके, we are going through now question number 3 students. Mr. Rakesh retires from PQR Limited on 30th June 2019.
ये इसका रिटायरमेंट डेट है 30 जून 19 एंड वॉज एंटाइटल्ड टू ए पेंशन ऑफ 10,000 पर मंथ। पेंशन की बात कर रहा है, हमने नोट्स में डिस्कस किया था पेंशन और ऑफ टू टाइप, एक होता है कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब स्टूडेंट्स मंथली पेंशन, मंथली पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, ठीक है, तो ये तो टैक्सेबल होगा। अब आगे क्या लिखा है, on 1st Jan 2020 he gets 40% of his pension commuted मतलब ad hoc, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एंड इफ ही रिसीव्स कम्यूटेड पेंशन इट विल बी एग्जेम्प्ट, बट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ही रिटायर्ड फ्रॉम PQR लिमिटेड, दैट मीन्स हम कोई प्राइवेट कंपनी होगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ओके। कैलकुलेट एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ पेंशन इफ नंबर 1 ही रिसीव्स ग्रेचुइटी एंड ही डजंट रिसीव्स ग्रेचुइटी, ठीक है, उसने पूछा एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ पेंशन स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अभी पेंशन की बात हो रही है स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग नाउ पेंशन। पेंशन कितनी तरह की होती है स्टूडेंट्स, अगेन अनकम्यूटेड, देन यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, 10,000 पर मंथ पूरा टैक्सेबल होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, रिटायर कब हुआ था स्टूडेंट्स, देखो 30 जून को रिटायर हुआ था, यहाँ पे मेंशन मैंने मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया 30 जून 19। अच्छा, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल टू अस स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ओके। फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल टू अस इज, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, 1 अप्रैल 19 टिल 31 मार्च 20, जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ टू गेट द आंसर, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। बट स्टूडेंट्स देखो, सिर्फ पेंशन का क्वेश्चन है, सैलरी वगैरह कुछ दिया नहीं है। ही रिटायर्ड ऑन 30 जून, तो पेंशन ऑब्वियसली कब से स्टार्ट होगा, रिटायरमेंट के बाद से ना, तो आपका पेंशन स्टार्ट होगा 1 जुलाई 19। आप लोग बाद में लिखना स्टूडेंट, जस्ट रेफर व्हाट आई एम डूइंग, टिल 31 मार्च 20। ही रिटायर्ड इन द मंथ ऑफ जून, 30 जून, तो ऑब्वियसली पेंशन रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट होता है, तो स्टूडेंट्स 1 जुलाई से ही स्टार्ट होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, प्लीज डोंट राइट, तो अगर 10,000 पर मंथ मिल रहा है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय जुलाई से मार्च तक काउंट करो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। अवर ईयर विल एंड ऑन 31 मार्च 20, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, सो इट इज 9 months, सो 90,000 विल बी टैक्सेबल। अगर क्वेश्चन में अगर और कोई डिटेल्स डेटा नहीं है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट हैपेंड, मैंने जब हमने थियरी लिखा था, जब मैंने एक्सप्लेन किया था, ऑन 1 Jan 2020 ही गेट्स 40% ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड फॉर ₹5 लाख, ठीक है, उसका एज पर द सर्विस रूल ही वॉज एंटाइटल्ड टू 10,000 पर मंथ पेंशन। बट 1 Jan को उसको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ी, he needs some cash for any purpose, he went to the employer and he said कि you are paying me 10,000 per month ना, प्लीज़ आज मुझे कैश की ज़रूरत है, ad hoc 40% you give me right now, 5 lakh rupees, whatever payment you are going to make me in future per month basis, out of that certain amount you pay it right now, जो भी मुझे आप मुस्तकबिल में, फ्यूचर में पर मंथ देना चाहते हो ना, उसमें से कुछ अमाउंट आज ही दे दो मुझे स्टूडेंट्स, ओके, दैट इज नोन एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और कम्यूटेड पेंशन स्टूडेंट्स। तो इसी ने ऐसे ही किया, जैन के महीने में जाके इसने पेंशन कम्यूट करा लिया। देन व्हेन वी रिकॉर्डेड नोट्स एट दैट स्टेज आई एक्सप्लेन, व्हेन यू गेट योर पेंशन कम्यूट, तो 10,000 पर मंथ वॉज प्रॉमिस्ड, बट वॉट यू डिड, फ्यूचर का रिसिप्ट यू कलेक्टेड एज ऑन टुडे, प्रेजेंट में आपने कलेक्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली फिर फ्यूचर में आपको पूरा 10,000 नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, आपका एम्प्लॉयर 10,000 में से कुछ डिडक्ट कर लेगा, फिर जब दिन आपने कम्यूट कराया 1 Jan को, उसके बाद से आपको 10,000 पर मंथ नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर विल पे यू लेस देन 10,000, व्हाई, बिकॉज यू हैव कलेक्टेड योर फ्यूचर रिसिप्ट्स एज ऑन टुडे इटसेल्फ, ओके, आपने उसको कम्यूट करा लिया। कम्यूट मतलब you are receiving 10,000 per month, you needed urgent cash for any purpose, you went to the employer and told him कि sir you are paying me 10,000 per month, but please I need 5 lakh
टुडे, तो उसने 5 लाख तो दिया, अब वो क्या करेगा फ्यूचर में ही वोंट पे यू 10,000 पर मंथ, वो 5 लाख एडजस्ट करेगा ना, तो एडजस्ट दैट 5 लाख आपका पर मंथ पेंशन है ना उसको वो कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा. सो वेन एवर कम्यूटेशन इज गिवन स्टूडेंट्स योर पर मंथ पेंशन रिड्यूसेस. अभी कम्यूट कब हुआ? सो स्टूडेंट्स दिस इज द करेक्ट आंसर व्हेन कम्यूटेशन इज नॉट गिवन. बट अभी फिलहाल हमारे लिए आंसर अभी ये गलत हो गया बिकॉज क्वेश्चन में कम्यूटेशन दिया है. कम्यूटेशन कब हुआ स्टूडेंट्स? वहाँ पे क्या लोग कब कहा उन्होंने कम्यूटेशन? डेट 1 Jan. कम्यूट कब हुआ स्टूडेंट्स? पेंशन कम्यूटेड एज ऑन 1 Jan 20 को किया, मतलब दिसंबर तक आपका पेंशन क्या था? अनकम्यूट था. तो अगर अभी मुझसे कोई पूछेगा अनकम्यूटेड कितना मंथ रहा, आप रिटायर हुए 30 जून, तो 1 जुलाई से आपका पेंशन स्टार्ट होगा टिल 31 December 19 आपका पेंशन कम्यूट रहा. अनकम्यूट रहा. From 1 Jan you went to the employer and requested him to make it commuted pension, है ना स्टूडेंट्स? तो दिसंबर तक आपका अनकम्यूट रहा. सो नाउ हाउ मेनी मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए स्टूडेंट्स. सो ये 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाई 6. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. ओके अब क्या होगा स्टूडेंट्स? जैन ऑनवर्ड्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपका जैन ऑनवर्ड्स कम्यूट हो गया. कितना कम्यूट हो गया? 40%. मतलब अभी भी 60% अनकम्यूट है. सो 10,000 इंटू 60%, जैन, फेब, मार्च, सो 3 मंथ्स. मैंने कहा ना स्टूडेंट्स, अब वो आपको जैन ऑनवर्ड्स ही वोंट पे यू फुल 10,000, ही विल रिड्यूस. तो कितना रिड्यूस किया? 40% यू कम्यूटेड ना, तो 40% उसने रिड्यूस कर दिया. सो दैट मीन्स स्टिल 60% इज अनकम्यूटेड. 10,000 का 60%. सो 10,000 इंटू 6 इज हाउ मच स्टूडेंट्स? 6,000. 10,000 इंटू 60% इज 10,000 इंटू 6 इज 60,000. मैंने इस खाली 6 लिख दिया, सॉरी, दिस इज 60,000. 10,000 इंटू 60% इज 6,000. 6,000 इंटू 3 करेंगे तो 18,000. सो स्टूडेंट्स आपका कितना अनकम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होगा? 78,000. सो इफ वी फॉलो दिस डेटा, अगर कम्यूटेशन नहीं दिया है तो देखो अनकम्यूट पेंशन 90,000 टैक्सेबल होगा फ्रॉम 1 जुलाई टिल 31 मार्च. बट व्हेन यू कम्यूट योर पेंशन ना स्टूडेंट्स, तो क्या करने का? अनकम्यूट को अब सेग्रीगेट करने का, अलग अलग लिखने का. कितना दिन वो अनकम्यूटेड रहा? एंटायर अमाउंट, फुल अमाउंट. and how much was commuted, balance will be still balance will be still uncommuted. Okay, so from July onwards till December he will get full pension of 10,000 per month. But as soon as he commutes his pension on 1st Jan, now 1st Jan onwards till 31st March he won't receive full 10,000. जितना commute किया उसको ignore कर दो. So 40% I ignored, only 60% I have considered. And Jan, Feb, March 3 महीने. Why students? Because our financial year ends on 31st March. इनकम टैक्स में आप अप्रैल से मार्च का कैलकुलेशन करते हैं ना, बट ये सिर्फ पेंशन का क्वेश्चन है, तो पेंशन तो जुलाई से स्टार्ट हो रही है. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई टिल मार्च. दिसंबर तक आपका अनकम्यूट रहा and still uncommute था स्टूडेंट, बट दिस was for 6 months and then again for 3 months. So uncommuted 1st जुलाई से 31st दिसंबर, फिर हमने 1st Jan 2020 से टिल 31st मार्च 20, ऐसा अलग अलग 2 कैलकुलेशन बताया. नाउ कम्यूटेड पे आ जाओ स्टूडेंट्स. अभी देखो कम्यूटेड कितना एग्जेम्प्ट होता है, ये आसान है, बहुत सिंपल है. कम्यूटेड हाउ मच ही कम्यूटेड स्टूडेंट्स? 5 लाख. ऐसे ही बोला ना, ही कम्यूटेड 40% ऑफ हिज पेंशन एंड गॉट 5 लाख. लेस, अभी इसमें एग्जेम्पशन मिलता है. अनकम्यूटेड में एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, वो पूरा टैक्सेबल है 78,000. लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A. कैसा करने का स्टूडेंट? कितना परसेंट उसने कम्यूट किया? 40%. हाउ मच ही रिसीव्ड? 5 लाख. फाइन 100%. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 फाइन करो. कितना उसने कम्यूट किया? राइट दैट परसेंटेज एंड इक्विवेलेंट अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस 5 लाख. तो 100 फाइन करो. 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 40. परसेंटेज की प्रेस मत करना. तो स्टूडेंट्स 100 का जो आंसर है ना आपको आएगा 12,50,000. देन इन नोट्स वी हैव रिकॉर्डेड, इफ यू रिसीव ग्रेचुइटी 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू, इफ यू डोंट रिसीव ग्रेचुइटी हाफ ऑफ कम्यूटेड वैल्यू, ऐसा हमने नोट्स में लिखा था स्टूडेंट्स. सो डज ही रिसीव्स ग्रेचुइटी? यहाँ देखो, एक ही क्वेश्चन को हमको 2 बार सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. सॉरी, कहाँ गया क्वेश्चन? यहाँ पे. He receives gratuity. ऐसा assume करो he receives gratuity. If he is receiving gratuity, then this 12,50,000 should be divided by 3.
दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 3. सो 12,50,000 को डिवाइड बाय 3 कर लो, इट कम्स टू 4,16,667. इतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 41,667. सो बैलेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल 83,333. So 78,000 is taxable. Why students? Because it was uncommuted. और commute कितना taxable हो जाएगा? 83 plus, sorry. So total pension taxable will be 1,61,334. 334. Okay? So ये important है students, when you get your pension uncommuted ना, सो जिस दिन आपका पेंशन स्टार्ट हुआ उस दिन से लास्ट डे अप टिल द डेट व्हेन इट वाज नॉट कम्यूटेड, तब तक तो आपको पूरा पेंशन मिलेगा. बट एज सुन एज फ्रॉम 1st Jan यू कम्यूटेड योर पेंशन, नाउ यू कैन एक्सपेक्ट सेम अमाउंट ऑफ पेंशन पर मंथ. यू मस्ट रिड्यूस. कितने से रिड्यूस करने का? 40% कम्यूट कर लिया ना, तो 40% जाने दो, तो यू विल रिसीव नाउ ओनली 60% पर मंथ. लॉजिकल है ना स्टूडेंट्स, आपने फ्यूचर का पैसा आज कलेक्ट कर लिया. कितना कलेक्ट कर लिया आपने? 40% ऑलरेडी एडवांस कलेक्ट कर लिया. तो फ्यूचर में योर एम्प्लॉयर विल पे यू ओनली 60%. 40% तो उसने आपको आज ही पे कर दिया. सो 60% आई रिकॉर्डेड हियर. ओके, सो दिस इज टैक्सेबल एंटायरली. हाँ, कम्यूटेड पेंशन जो भी अमाउंट देगा आई रिकॉर्डेड हियर. वो कितना परसेंटेज है वो रिकॉर्ड करने का? फाइन 100. इफ यू रिसीव ग्रेचुइटी डिवाइड बाय 3. इफ यू डजंट रिसीव ग्रेचुइटी डिवाइडेड बाय 2. ओके स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना है. देन दे हैव सेड इफ इट डज नॉट रिसीव्स ग्रेचुइटी. स्टूडेंट्स उस पे सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज इन दिस 78,000. सॉरी, नो चेंज इन दिस 78,000 स्टूडेंट्स. वो सेम रहेगा वेदर यू रिसीव ग्रेचुइटी और यू डोंट रिसीव ग्रेचुइटी. किस पे फर्क पड़ता है? अगर ग्रेचुइटी आपको मिलता है तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स? इफ ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव, इफ ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव, तो क्या करना है? सब कुछ सेम स्टूडेंट्स, नो चेंज. ये भी सेम, हाँ, 40, 5 लाख, 100, तो यू विल गेट 12,50,000. बट खाली चेंज क्या होगा? 12,50,000 को डिवाइड बाय 2 कर लेना, तो यू विल गेट 6,25,000. देन व्हाट यू विल डू? इनर कॉलम में आपको कितना मिला स्टूडेंट्स? 5 लाख है ना. पेंशन 5 लाख था ना कम्यूटेड, उसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा? 6,25,000. तो 5 माइनस 6,25,000 करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा. इनकम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो उसको नील लिख देने का. दैट मीन्स कम्यूटेड पेंशन इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि आंसर नील आ रहा है. यहाँ पे कैसा था? 5 लाख माइनस दिस, आई गॉट सम आंसर, सो दिस अमाउंट इज टैक्सेबल. सो टोटल किया मैंने. अब क्या होगा? वो 78,000 तो ऐसा ही बचेगा, सेम वेदर यू रिसीव ग्रेचुइटी और यू डोंट रिसीव ग्रेचुइटी. दिस विल रिमेन सेम, सो आई कॉपीड द सेम आंसर. इफ ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव्ड, सो ये तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, ये सेम है, ऊपर से ही मैंने कॉपी कर लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज सेम, ध्यान रखना. ओके, 78,000 कॉपी कर लिया. हाँ, ये कैलकुलेशन करने का, यू गॉट 12,50,000 डिवाइड बाई 2 करो, सो यू गॉट 6,25,000. सो 5 लाख माइनस 6,25,000 इज नेगेटिव, सो नेगेटिव इनकम नहीं हो सकता. तो 78, उसको नील लिखने का, नेगेटिव आया तो 78,000 प्लस 0, क्योंकि नील है ना, तो हाउ मच विल बी टैक्सेबल पेंशन नाउ? 78. सो इफ यू रिसीव ग्रेचुइटी, दिस इज द टैक्सेबल पेंशन. इफ यू डजंट रिसीव ग्रेचुइटी, दिस इज द टैक्सेबल पेंशन. ठीक है, खाली इतना फर्क होता है दोनों में, बाकी पूरा बेसिक दोनों का सेम है. यहाँ पे आके चेंज होता है. इफ यू रिसीव ग्रेचुइटी डिवाइड बाई 3, इफ यू डजंट रिसीव ग्रेचुइटी डिवाइड बाई 2, बाकी सब कुछ सेम रहेगा स्टूडेंट्स. सो दिस वाज पेंशन. ये ध्यान रखने का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कब से कम्यूट किया वो दिन से आपका पेंशन पर मंथ रिड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स. ओके, वाई एम डिस्कसिंग इन द बिगनिंग इटसेल्फ ऑल दीज पॉइंट्स. बाद में जब इनकम फ्रॉम सैलरी का फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे सब वापस आएगा, पेंशन, ग्रेचुइटी, नो नीड टू वरी. तो आपको आइडिया होना चाहिए कम से कम, क्या सब एक साथ इनकम फ्रॉम सैलरी का फुल फ्लेज क्वेश्चन में ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इटसेल्फ, तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा. ओके, तो कुछ ऐसा मेजर पार्ट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सेपरेटली फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी. फुल फ्लेज क्वेश्चन में अगेन यू विल फेस द सेम थिंग, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी स्टूडेंट्स. ठीक है, सो दिस वाज पेंशन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट्स? 4. अभी ये लीव सैलरी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. लीव सैलरी. मिस्टर मितेश रिटायर्ड फ्रॉम एम लिमिटेड. एम लिमिटेड से रिटायर हुआ ऑन 31st Jan 2020 आफ्टर रेंडरिंग सर्विस फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 35 ईयर्स.
35 साल वो कंपनी में काम किया एम लिमिटेड और रिटायर हो गया। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय हिम। लीव सैलरी उसको मिला 6 लाख, ये सब रुपीज़ में है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ डेज लीव अलाउड बाय द कंपनी 25। कंपनी कहती है कि आपको साल में 25 दिन छुट्टी ले सकते हो। नंबर ऑफ डेज लीव अवेल 35 डेज, मतलब उसने पूरा अपना क्या कहेंगे ड्यूरिंग सर्विस ही हैज़ टेकन 35 डेज लीव। नंबर ऑफ डेज लीव अलाउड बाय द कंपनी, स्टूडेंट्स मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, पर ईयर यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ सो दैट बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे। जस्ट होल्ड ऑन, मैं उसको चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, नंबर ऑफ डेज लीव अवेल्ड बाय द कंपनी, नहीं बाय द एम्प्लॉय। नंबर ऑफ डेज लीव अलाउड बाय द कंपनी, हाँ नंबर ऑफ डेज लीव अलाउड बाय द कंपनी इन ईच ईयर ऑफ सर्विस। कंपनी का पॉलिसी है साल में आप 25 दिन छुट्टी ले सकते हैं। नंबर ऑफ डेज लीव अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस, ये नंबर ऑफ डेज लीव मतलब पूरा कितना साल उसने काम किया, 35 साल। 35 साल में सिर्फ उसने 35 छुट्टी लिया स्टूडेंट, दैट इज अ सिंपल मीनिंग। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 30,000 पर मंथ। सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द पास्ट मंथ, अप्रैल से अगस्त सितंबर टिल दिसंबर 28,000 पर मंथ, 29,000 पर मंथ। डीएनएस अलावेंस 50% कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्लियरली उन्होंने कहा है 50% इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। अप्रैल से अगेन अगस्त, सितंबर से जान। कमीशन एट 5%, अगेन अभी ये परसेंटेज में ना तो वी मस्ट कंसिडर। टर्न ओवर अचीव्ड बाई हिम अप्रैल टिल अगस्त, सितंबर टिल जान। ही रिटायर्ड फ्रॉम XY लिमिटेड इन द ईयर 99 पास्ट में एंड रिसीव्ड 3,50,000 आउट ऑफ विच 50,000 वॉज एग्जेम्प्टेड। कैलकुलेट टैक्सेबल लीव सैलरी, ठीक है स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लीव सैलरी पे आ गए अभी हम लोग। We are now on leave salary, ठीक है। लीव सैलरी अगर ड्यूरिंग सर्विस मिला तो वो टैक्सेबल होता है, वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपने रिटायर नहीं हुए, पहले ही आपने लीव सैलरी ले लिया तो इट इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉय स्टूडेंट्स। अच्छा, नाउ इट कम्स टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सम PQR XYZ ऐसा दिखा है स्टूडेंट्स। सो वी स्टार्ट विद दिस नंबर 1 एक्चुअल, जो भी उसका एक्चुअल लीव सैलरी है 6 लाख दिया है, स्टार्टिंग में ही दिया है आपको 6 लाख। नंबर 2 रुपीज़ 3 लाख, ये गवर्नमेंट ने रखा है। नंबर 3 एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, मैंने 10M लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 10। नंबर 4 एवरेज सैलरी ऑफ 10 months मल्टीप्लाई बाय बैलेंस लीव, कितनी छुट्टी उसकी बाकी है वो देखना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 2 आंसर तो स्टार्टिंग के पता है। अभी एवरेज सैलरी 10 मंथ्स, तो उसके लिए देखो रिटायर कब हुआ वो। ही रिटायर्ड ऑन 31 Jan। वी आर विथ लीव सैलरी। लीव सैलरी का रूल क्या है, प्रेसिडिंग मंथ का रूल इज़ फॉर ग्रेचुइटी, मतलब अगर जैन में रिटायर हुआ तो प्रेसिडिंग मंथ इज दिसंबर। स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर एंड गो बैकवर्ड्स, रिवर्स में जाओ, रिवर्स गियर से स्टूडेंट्स फ्रॉम दिसंबर गो बैक एंड कैलकुलेट 10 मंथ्स का एवरेज, दैट वॉज फॉर ग्रेचुइटी। लीव सैलरी में क्या है, प्रिसीडिंग डेट, तो 31 Jan का प्रिसीडिंग डेट क्या होगा, 30th Jan। सो 30th Jan से आपको 10 मंथ्स पीछे जाना पड़ेगा। सो 30th Jan मतलब स्टूडेंट्स पूरा महीना हो गया ना जैन का। सो आई मस्ट स्टार्ट फ्रॉम मंथ ऑफ जैन स्टूडेंट्स, मुझे जैन से स्टार्ट करना चाहिए। समझ में आ गया रीजन, बिकॉज प्रिसीडिंग डेट, इफ द पर्सन रिटायर्स ऑन 31st Jan, सो 31st Jan का प्रिसीडिंग डेट इज 30th Jan। 30th Jan से पीछे जाना है आपको 10 मंथ्स, सो एंटायर मंथ ऑफ जैन शुड बी काउंटेड। बट अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बेसिक है, DA और कमीशन भी दिया है कुछ परसेंटेज में, तो वो लिखेंगे हम लोग। तो वी आर स्टार्टिंग विथ Jan 2020। Jan से पहले होता है December 19 आएगा, November 19, October 19, September 19, August 19, July 19, June 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, May 19 एंड April 19। हो गए 10 महीने। ओके, सो देखते हैं अभी बेसिक कितना था, DA कितना था, कमीशन सेम था तो गुड फॉर अस, फिर तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट सेम नहीं है स्टूडेंट्स, अलग अलग है। देखो यहाँ पे सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग, हाँ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना था इसका, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज 30,000 पर मंथ। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मतलब जैन में 30,000 पर मंथ था।
अप्रैल से लेके अगस्त तक 28 था और सितंबर से दिसंबर 29. आगे सर में स्टूडेंट्स दे हैव गिवन दैट डेटा स्टूडेंट्स, वी आर नॉट मेकिंग एनी अजम्पशन. सो यहाँ पे 30,000 था. अप्रैल से अगस्त कितना बोला था? 28 एंड देन 29 ना. सो अप्रैल से अगस्त यहाँ पे स्टूडेंट्स, अप्रैल से अगस्त इट इज 28,000. सो मई में भी 28 ऑब्वियसली, जून में भी 28, अप्रैल से अगस्त तक उन्होंने कहा है. देन सितंबर से दिसंबर दे हैव सेड 29, नवंबर, सितंबर से दिसंबर ना, सॉरी दिसंबर 29. सेम इज द केस विद डीए स्टूडेंट्स. देखो डीए भी ऐसा है, अप्रैल से अगस्त दिया आपको 5,000 और सितंबर से जान तक 8,000, 5 and 8. ये 5,000 है. अप्रैल से अगस्त तक हमको 5,000 लिखना है. देन बाद में कितना हो गया? 8,000 सितंबर ऑनवर्ड्स. ओके. सेम इज द केस विद कमीशन. हर महीना देखो उसका टर्नओवर अलग है. अप्रैल से अगस्त इट इज 25 लाख. इट इज नॉट 25 लाख पर मंथ. अप्रैल से अगस्त कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. सो 5 मंथ्स होते हैं. सो 25 लाख डिवाइड बाई 5, सो 5 लाख पर मंथ हो जाएगा. फिर 5 लाख पर मंथ का 5% फाइंड करो स्टूडेंट्स, इंटू 5%, इट कम्स टू 25,000. और ये 30 लाख है. और सितंबर से जान, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जान, ये भी 5 मंथ्स होते हैं. ठीक है. 25 लाख एंड 30 लाख. तो स्टूडेंट्स 25 लाख का 25 लाख डिवाइड बाई 5 करो तो 5 लाख पर मंथ आएगा. देन 5 लाख पर मंथ को स्टूडेंट्स 5 लाख पर मंथ, सॉरी, इंटू 5%, सो इट कम्स टू 25,000. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कमीशन 25 अप्रैल से सितंबर, 25 सॉरी अप्रैल से अगस्त ना, एक बार चेक कर लूँ रॉन्ग नहीं हो जाए स्टूडेंट, सॉरी. अप्रैल से अगस्त, या इट इज़ 25 लाख. देन सितंबर से जान इट इज़ 30 लाख. सो 30 लाख सितंबर से जान तक 5 मंथ्स होते हैं. डिवाइड बाई 5 इट कम्स टू 6 लाख इंटू 5%, सो इट कम्स टू 30,000 स्टूडेंट्स. 30,000 आएगा. सो 30,000 अच्छा, डीए उन्होंने कुछ कहा था कितना परसेंट लेना है, कभी मैंने गलत नहीं लिख दिया स्टूडेंट्स, अभी मुझे याद आया. हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, देख लेता हूँ. हाँ 50% शुड बी कंसिडर्ड. तो 5 and 8 का 50%. आप तो शायद आई थिंक हो सकता है आप पहले ही रियलाइज़ कर गए हो, मैंने अभी ध्यान दिया. ओके सॉरी. This is 2,500 and this will be 4,000 students. 50% लेना है ना. So here we'll write 2,500. अभी मुझे ध्यान आया कि DA में भी एडजस्टमेंट था. This is 2,500 and September onwards it is 8,000. So 8,000 का half. 50% देव से ना should be considered for retirement benefits. तो 50% लेंगे हम लोग. ओके अब सबका टोटल करते हैं स्टूडेंट्स. अभी ये देखो तो 30 + 4 + 30 64, 29 + 4 33, 33 + 3 36. स्टूडेंट्स ये सब आंसर सेम आएंगे. देखो ये भी 36 आए, 36 नहीं सॉरी 66. 29 + 4 इज सॉरी 29 + 4 इज 33, 33 + 30 इट विल बी 63. ओके नाउ 29 + 4 33, 33 + 30 63. ये भी 63 होगा, ये भी 63 होगा. तो ये तो आंसर सेम. ठीक है. नेक्स्ट 28,000 and 25 53 53 + 2,500 इट विल बी 55,500.
Same is the case here, 55 500, 55 500, 55 500. आप स्टूडेंट्स एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? सबका टोटल करो एंड डिवाइड बाय 10. तो टोटल कैसा करेंगे? देखो जान का तो 64 लिख दिया मैंने, प्लस 1 2 3 4, 4 मंथ्स का आंसर सेम है तो 63,000 इंटू 4 लिख लिया, प्लस 1 2 3 4 5, 55 500 5 मंथ्स का आंसर है, सो इंटू 5 एंड अपॉन 10. तो आंसर क्या होगा? 64,000 प्लस 63,000 इंटू 4, 2,52,000, 2,52,000 प्लस 55,500 इंटू 5, 2,77,500, 2,77,500, ओके, अपॉन 10. तो स्टूडेंट्स एवरेज विल बी 59350. ये मुझे आंसर आ गया 59350. So students, we got average salary, so we got 59,350 multiply by 10. So third answer will be multiply by 10 here students. Multiply by 10. So answer will be 593,500. अभी फोर्थ आंसर चाहिए, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इनटू बैलेंस लीव. तो बैलेंस लीव देखो कैसे फाइंड करने का. लुक किया स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है. अभी अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कमीशन वाला तो हमने ग्रेचुटी में भी किया था, ये अभी इंपॉर्टेंट है. नंबर ऑफ डेज लीव अलाउड बाय द कंपनी इन ईच ईयर ऑफ सर्विसेज 25. आप साल में कितनी छुट्टी ले सकते थे? 25 दिन ना स्टूडेंट्स. सो लीव अलाउड ऐसा लिखने का, ये कंपनी का रूल के हिसाब से. लीव अलाउड बाय कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करता था. ठीक है, हाउ मच? 35 ईयर्स उसने काम किया स्टूडेंट्स. हर साल कितना दिन छुट्टी ले सकता है? 25 डेज. सो 35 इंटू 25 करो, सो इट कम्स टू 875 डेज. मतलब ही वॉज एलिजिबल टू टेक 875 डेज लीव पूरे 35 साल में, नॉट इन 1 ईयर. एक साल में इतने दिन होते भी नहीं है स्टूडेंट्स. ओके, सो ऐसा इंटरप्रिटेशन मत करना. ओके, देन व्हाट ही डिड, नंबर ऑफ डेज लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस. पर ईयर नहीं बोल रहा है, अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस मतलब पूरे 35 साल में वो रेगुलर था, बराबर वो ऑफिस जाता था, और उसने क्या किया स्टूडेंट? सिर्फ 25 दिन छुट्टी लिया. पर ईयर नहीं कहा है 25 दिन. इफ दिस है ना पर ईयर, देन 35 इंटू करना पड़ेगा हमको, वहाँ पे पर ईयर नहीं लिखा. अगेन देख लो आप, नंबर ऑफ डेज लीव अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस. ड्यूरिंग सर्विस मतलब पूरे 35 साल में उसने सिर्फ 35 छुट्टी किया, मतलब एक साल में एक ही छुट्टी करता था. आप ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं. दे हैव नॉट सेड पर ईयर, ये ध्यान रखने का स्टूडेंट्स. ओके, सो लेस लीव अवेल्ड, कितनी छुट्टी आप ले चुके हो. यू आर एंटाइटल्ड फॉर 875 डेज, बट आपने कितने दिन छुट्टी ली? 35 दिन. मतलब आपकी बैलेंस लीव कितनी बची है? बैलेंस लीव मिल गया हमको 840 डेज आया स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेज में है ना, बट ऊपर हम सब एवरेज सैलरी वगैरह मंथ्स में कर रहे हैं ना. तो ये 840 डेज को अगर मैं डिवाइड बाई 30 कर दूं तो आपको 840 डिवाइड बाई 30 करो तो आपको आंसर नंबर ऑफ मंथ्स में आएगा. सो दिस विल बी 28 मंथ्स. तो आपका बैलेंस लीव इज 28 मंथ्स. फॉलोड? ठीक है, हमने ये कैलकुलेशन डेज में किया, बट आई रिक्वायर योर एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स. सिंस ये मंथ्स में है तो बैलेंस लीव भी मंथ्स में होना चाहिए ना. प्योर मैथ्स, सिंपल मैथ्स. इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई, 10 मंथ्स है यहाँ पे, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स है, तो बैलेंस लीव शुड ऑल्सो बी इन मंथ स्टूडेंट्स. वो उसमें नहीं हो सकता, डेज में, नॉट अलाउड. सो एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स तो देखो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 59350, 59350 मल्टीप्लाई बाई 28 मंथ्स का आपका बैलेंस लीव है. So 59350 is your average salary for 10 months multiplied by 28. So आपको आएगा 16,61,800 रुपीज़. रुपीज़ 16,61,800. This is the answer for the fourth point. स्टूडेंट्स, पास में वो कोई एम्प्लॉयर के पास काम करता था. देखो यहाँ का, he retired from XY Limited in 1999 and received leave salary 3,50,000 out of which 50,000 was exempted. जब वो कंपनी से रिटायर हुआ था XY से, उस पीरियड में उसका 50,000 क्या हुआ था? एग्जेम्प्ट हुआ था. तो 50,000 यहाँ से माइनस करने का, जस्ट लाइक ग्रेचुइटी. तो सेकेंड आंसर आपका हो गया 2,50,000. नाउ विल से विच एवर इज लेस, 6 लाख
2,50,000, 5,93,500 या 16,61,800, विच एवर इज लेस। चारों आंसर को कंपेयर करो। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 2,50,000 लेस है, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी विल बी 2,50,000। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिखता हूँ उसको स्टूडेंट्स। सो ऐसे लिखने का, लीव सैलरी रिसीव्ड 6 लाख मिला है उसको स्टूडेंट्स, एक्चुअल जो है हमको 6 लाख दिया था, लेस एग्जेम्प्ट, आप प्राइवेट सेक्टर में हो, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a). अभी मैंने फाइंड किया विच एवर इज लेस 2,50,000 आया, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 3,50,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बैलेंस लीव, ये कैलकुलेशन ग्रेचुइटी में भी होता है स्टूडेंट, खाली फर्क क्या होता है, वहाँ पे प्रीसीडिंग मंथ से स्टार्ट करते हैं या प्रीसीडिंग डेट, दैट इज द डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, ये बैलेंस लीव का कैलकुलेशन इसमें करना पड़ता है हमको। कभी कभी वो लोग देते हैं हाउ मच इज द बैलेंस लीव, नहीं दिया है तो हमको करना पड़ेगा, बिकॉज वी रिक्वायर ईयर इन दिस पॉइंट नंबर 4 बैलेंस लीव, और बैलेंस लीव मंथ्स में होना चाहिए। तो इफ इट इज इन डेज, कन्वर्ट इनटू मंथ्स। हाउ टू कन्वर्ट दैट, डिवाइड बाई 30, 840 days डिवाइड बाई 30 days, so 28 months. Okay, this is the calculation for leave salary. तो हमने ग्रेचुइटी का 2 क्वेश्चन किया, पेंशन का किया, लीव सैलरी वंस अगेन ये आएगा, नो नीड टू वरी स्टूडेंट्स, बट आपको एक बेसिक आइडिया तो हो गया ना कि लीव सैलरी होता क्या है, कैलकुलेशन कैसा होता है। क्योंकि सब चीज़ में एक साथ स्टार्ट करता फुल फ्लेज क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में नहीं आता, सब बाउंसर होता। सो ग्रेचुइटी का आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो गया, पेंशन व्हाट वी डू एंड लीव सैलरी व्हाट वी डू, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। बाकी सब प्रोविजन तो अलावेंस परक्विजिट आपको याद रखने पड़ते हैं कि क्या एग्जेम्प्ट है क्या टैक्सेबल है। इसमें कैलकुलेशन भी होता है, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता अलावेंसेस एंड परक्विजिट में।